السلام علیکم فرینڈ، تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ریئیکشن چینل جو ہم لوگوں نے نیا بنایا، اور یہ ہمارے چینل کی فرسٹ ویڈیو ہے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جی ریئیکشن چھٹواں کلمہ کا کیا راز ہے۔ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ، ہم بھی دیکھیں گے تو جانیں گے، اور آپ کو بھی جاننا ہے تو ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ اور میں بتانا بھول گیا کہ ہمارے ساتھ مجاہد رفیق ہیں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے بات کریں۔ جی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ چھٹے کلمہ کیا راز ہے۔ ہماری ویڈیو ساتھ بنے رہیے تو ہم آپ تفصیل سے دیکھیں گے کہ ہمارے چھٹے کلمہ میں کیا راز ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس مائک نہیں تھا، اس لیے ہم اپنے موبائل سے ہی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ تو چلیں پلے کرتے ہیں کہ چھٹویں کلمے کا کیا راز ہے۔ تو یہ ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ایک رات میں تم اتنا کما لو گے جتنا یہاں مہینے بھر میں نہیں ملتا۔ میرا رزق دینے والا تو نہیں، اوپر والا ہے۔ ارے کیا سوچ رہے ہو بے وقوف؟ یہ دولت تمہاری زندگی بدل دے گی، پکڑو اسے۔ اگر میں اسے روز صاف نہ کروں تو جس دن دشمن سامنے ہوگا یہ تلوار میان سے باہر ہی نہیں نکلے گی۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان چٹان جیسا مضبوط ہے، لیکن کبھی کبھی ایک باریک سی دکھاوے کی چاہت اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں اب سجدہ اور لمبا کر دوں گا تاکہ یہ سب دیکھیں کہ میں اللہ کا کتنا بڑا ولی ہوں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن مشکل وقت میں ہمارا بھروسہ اس کے بجائے دھاگوں اور پتھروں پر ہوتا ہے۔ اگر میری یہ انگوٹھی کھو گئی تو میرا کاروبار ڈوب جائے گا، میری تو قسمت ہی اس نگ میں ہے۔ اور جب حقیقت کھلتی ہے تو انسان پاتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کی عبادت ایک پل میں راکھ ہو گئی، کیونکہ جڑ میں ہی دیمک لگی تھی۔ میری نمازیں، میرے صدقے سب ضائع ہو گئے۔ یا اللہ، میرا کھاتہ صفر کیسے ہو گیا؟ ٹھہریے، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو ایسے لٹنے مت دیجیے۔ کیا آپ وہ بختربند ڈھال نہیں چاہتے جو آپ کے اور شرک کے بیچ دیوار بن جائے؟ آج ہم اس روحانی ڈھال کو جانیں گے جو آپ کے ایمان کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ داستان ہے چھٹے کلمے کی، یعنی رد کفر کی۔ The sixth kalma, the shield of Iman. السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس سفر کے آخری اور سب سے مشکل پڑاؤ پر ہیں۔ آج ہم چھٹے کلمے کی اس ڈھال کو اٹھائیں گے جو انسان کو ذلت کی کھائی سے نکال کر عزت کی چوٹی پر بٹھا دیتی ہے۔ اس کے پہلے الفاظ ہی انسان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرکا بکا شیئا وانا عالم بہ۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں اور میں اسے جانتا ہوں۔ یہاں پناہ کیوں مانگی گئی؟ کیونکہ شیطان کبھی کبھی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسے سمجھنے کے لیے قرآن کا وہ منظر یاد کیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر فرعون کے ہزاروں جادوگر ایک پل میں سجدے میں گر پڑے تھے۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے غرج کر کہا، تم نے میری اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب کو مان لیا؟ قسم ہے میں تمہارے ہاتھ اور پیر الٹی دشا سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ موت سامنے تھی۔ اگر وہ چاہتے تو جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ کا شرک کر سکتے تھے، فرعون کو خدا بول سکتے تھے، لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ آج بھی قرآن میں گونج رہا ہے۔ اے فرعون، جو کرنا ہے کر لے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہمیں ہمارے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ ہم جان دے سکتے ہیں مگر جان بوجھ کر شرک نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں وہ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، تو وہ مطلب کہ فرعون سے ان کا مطلب ڈر نہیں ہوتا تھا، فرعون سے ڈرتے نہیں تھے، اپنے اللہ پہ ان کو پورا یقین ہوتا تھا، تو وہ اپنے ایمان پر پکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وَأَنَا عَالَمُ بِهِ، یعنی میں جانتا ہوں کہ انجام کیا ہوگا، پھر بھی میں تیرے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکوں گا۔ لیکن ہر بار امتحان تلوار کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی امتحان بھوک اور سونے کے سکوں کا ہوتا ہے۔ سنو، یہ 100 دینار تمہارے ہو سکتے ہیں، بس تمہیں اتنا کرنا ہے
कि इस खराब खजूर को अच्छी खजूर के नीचे छुपा कर बेच दो, किसी को पता नहीं चलेगा। ये वो वक्त होता है जब शैतान कहता है ले ले, तेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह माफ करने वाला है, अगर मना किया तो आज भी खाली हाथ घर जाएगा। अरे क्या सोच रहे हो बेवकूफ, ये दौलत तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, पकड़ो इसे। ये दौलत मेरे बच्चों की भूख तो मिटा सकती है मगर उनकी रूह को जला देगी। मेरा रिस्क देने वाला तू नहीं, ऊपर वाला है, मैं धोखा नहीं दे सकता। जब आप जानते हुए भी नुकसान के डर से या लालच में आकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते तो आप असल में छठे कलमे के पहले हिस्से पर अमल कर रहे होते हैं। यही वो वादा है जो हम अल्लाह से करते हैं, या अल्लाह दुनिया की कोई दौलत मुझे तेरे दर से नहीं हटा सकती। ये तो वो शिर्क था जो आंखों से दिखाई देता है और जिसे हम जानते हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो हम करते हैं और खबर भी नहीं होती, वो हमारे ईमान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। आइए अगले हिस्से में उस काली चींटी का राज जानते हैं। इसके अगले अल्फाज दिल को सुकून भी देते हैं और डराते भी हैं। वो अस्तगफिरुका लिमा ला आलमु बिही, इसका तर्जुमा है, और ए अल्लाह मैं तुझसे उस गुनाह की भी माफ़ी मांगता हूँ जिसे मैं नहीं जानता। यही वो पेंच है, हम सोचते हैं कि हमने कभी किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया और हमेशा बुत परस्ती से दूर रहें। हम तो पक्के मोमिन हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक शिर्क ऐसा भी है जो काली रात में काले पत्थर पर काली चींटी से भी ज्यादा पोशीदा है। इस अनजाने गुनाह की बारीकी और इस नाजुक मामले को समझने के लिए आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के बीच हुई उस बातचीत को सुनते हैं। एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे साथी से फरमाया, ऐ अबू बकर, शिर्क चींटी की चाल से भी ज्यादा खामोशी से तुम में दाखिल हो सकता है। या रसूल अल्लाह, अगर शिर्क इतना बारीक है कि महसूस भी ना हो तो हम इससे कैसे बचेंगे? हमारी नेकियां तो बर्बाद हो जाएंगी। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो अल्फाज न सिखा दूं जिसे अगर तुम कह लो तो अल्लाह तुम्हारे जाने और अनजाने दोनों किस्म के गुनाहों को माफ कर देगा। और तब ये छठा कलमा सिखाया गया। ये सिर्फ दुआ नहीं, ये हमारे ईमान की हिफाजत का सबसे मजबूत जरिया है। अब आप सोचेंगे, भाईजान आज के दौर में ये अनजाना शिर्क कैसे होता है? मिलिए जैद से। जैद ने अभी अभी एक बहुत बड़ा सदका दिया है। माशाअल्लाह, मैंने 10,000 रुपए दिए। देखो वो सब मुझे कैसे इज्जत की नजरों से देख रहे हैं। मैं वाकई बहुत नेक हूँ, अल्लाह मुझसे बहुत खुश होगा। रुकिए, यही वो काली चींटी काट गई। जैद ने नेकी तो अल्लाह के लिए शुरू की थी, लेकिन बीच में लोगों की तारीफ की चाहत आ गई। इसे कहते हैं रियाकारी, और हदीस में इसे शिर्क असगर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो ना नेकी करते हैं दिखावे के लिए। जैसे अभी सीन गुजरा है कि उसने नेकी की और लोगों को अपनी तारीफ भी कराई, लोगों के सामने उसने बयान भी किया कि मैंने ये नेकी की है। तो कुछ काफ़ी लोग इस तरह होते हैं कि ना वो अपना नेकियां तो करते हैं लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। कहा गया है, जैद को लगा उसने नेकी कमाई, लेकिन हकीकत में उसने अनजाने में अपने अमल को जला दिया। उसने अल्लाह के साथ लोगों की राय को शरीक कर लिया और उसे खबर तक नहीं हुई। बेटा, जब नेकी करके दिल में गुरूर आ जाए कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, तो समझ लेना कि सजदा तो रब का हुआ, लेकिन दिल नफ्स का गुलाम हो गया। इसी अनजाने गुनाह की माफी इस कलमे में है। यही वजह है दोस्तों कि हम अल्लाह से कहते हैं, अगर जाने अनजाने में मेरे दिल में रत्ती भर भी दिखावा या गुरूर आ गया हो तो उसे माफ कर दे, क्योंकि दिलों के हाल सिर्फ तू जानता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन गुनाहों के दाग धुलेंगे कैसे? वापसी का रास्ता क्या है? कलमे के अगले हिस्से में है वो तौबा का राज जो हमें इन गुनाहों की जंजीरों से आजाद करेगा। चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर। तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री व शिरकी। इसका मतलब है मैंने उस गुनाह से तौबा की और मैं उससे बेजार हुआ, यानी मैंने उससे रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ लफ्ज तबर्रा पर गौर कीजिए। सिर्फ तौबा का मतलब है लौट आना, लेकिन तबर्रा का मतलब है बुराई से ऐसी नफरत करना
कि उसे देखने का भी मन न करे, उससे घिन आए, इसे कहते हैं बेजारी। इस तबर्रह बेजारी को समझने के लिए आइए सही बुखारी की उस हदीस पर नज़र डालते हैं जो ईमान की बुनियाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदतें ऐसी हैं कि जिस इंसान में वो पैदा हो गईं उसने ईमान की मिठास को पा लिया। उनमें से एक ये है कि वो कुफ्र और गुनाह की तरफ लौटने को इतना ही नापसंद करे जितना वो आग में डाले जाने को नापसंद करता है। यही है कलमे का असल मकसद। सिर्फ जुबान से ये ना कहो कि अल्लाह माफ कर दे, बल्कि दिल में उस गुनाह के लिए आग जैसी नफरत पैदा करो। जब तक गुनाह मीठा लगेगा सच्ची तौबा मुमकिन नहीं। आइए इसे पुराने दौर के एक वाक़ये से समझते हैं। कासिम नाम का एक शख्स था जो पहले गलत सोहबत में रहता था और हराम कारोबार करता था। फिर अल्लाह ने उसे हिदायत दी और उसने तौबा कर ली। अरे कासिम, तुम यहाँ इत्र बेच रहे हो, हमारे साथ चलो, वही पुरानी महफिल है, वही पुराना मुनाफा है। एक रात में तुम इतना कमा लोगे जितना यहाँ महीने भर में नहीं मिलता। कासिम के पास मौका था, वो सोच सकता था कि दिल में तो ईमान है, बस थोड़ा कमा लेता हूँ, लेकिन उसने तबर्रातू पर अमल किया। मेरे भाइयों, मैंने सिर्फ काम नहीं बदला, मैंने अपना किबला बदल लिया है। जिस चीज से मेरा रब नाराज होता है अब वो मेरे लिए आग के अंगारों जैसी है। तुम अपनी दौलत ले जाओ, मुझे मेरा सब्र और मेरी तौबा प्यारी है। इसे कहते हैं व तबर्रातू, यानी ऐ अल्लाह, मैंने कुफ्र और शिर्क के रास्तों से ऐसी बगावत की है कि अब दुनिया की कोई लालच मुझे वापस नहीं ले जा सकती। याद रखिए, तौबा वो कैंची है जो आपको गुनाह की जंजीरों से काट कर अलग कर देती है। तो दोस्तों, दिल का मामला तो साफ हो गया, लेकिन हमारे जिस्म का एक हिस्सा ऐसा है जो हड्डी के बिना है मगर सबसे गहरी चोट देता है, वो है हमारी जुबान। कलमे के अगले हिस्से में उन 4 खतरनाक गुनाहों का जिक्र है जो नेकियों के पहाड़ को पल भर में राख कर देते हैं। तो चलते हैं अगले हिस्से में। यहाँ हम अल्लाह से एक साथ 4 चीज़ों से पनाह मांगते हैं, वल क़िज़्बी वल गीबती वल बिदअती वल नमीमती। इसका तर्जुमा है, और मैं पनाह मांगता हूँ झूठ से, और गीबत यानी पीठ पीछे बुराई से, और बिदत यानी दीन में नई बात से, और चुगली इधर की बात उधर करने से। ये चारों गुनाह अलग लग सकते हैं, लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, हमारी बेलगाम जुबान। गीबत भाई का मांस खाना है, नमीमत 2 दोस्तों में आग लगाना है, और बिदत दीन के असल रास्ते को टेढ़ा करना है। इनमें सबसे आम बीमारी गीबत है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका नक्शा कुछ यूं खींचा है, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम्हें तो इससे घिन आएगी। जब हम मजे ले लेकर किसी की बुराई करते हैं या 2 लोगों को लड़ाने के लिए चुगली करते हैं, तो रूहानी तौर पर हम अपने ही भाई की लाश को नोच रहे होते हैं। जुबान से निकले लफ्ज कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसे पुराने जमाने की एक हिकायत से समझते हैं। एक शख्स ने पूरे शहर में झूठ और चुगली फैला दी। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो एक बुजुर्ग के पास गया। हजरत, मेरा दिल बहुत भारी है। गुस्से में आकर मैंने अपने भाई के खिलाफ पूरे शहर में बहुत गलत बातें फैला दी, झूठ बोला, चुगली की। अब मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बताइए मैं इसे ठीक कैसे करूं? बेटा, घबराओ नहीं, बस एक छोटा सा काम करो। इस तकिए को लेकर बाजार के बीच चौराहे पर जाओ और इसे फाड़ कर इसके सारे पंख हवा में उड़ा दो। उसने सोचा ये तो बहुत आसान है। उसने सारे पंख उड़ा दिए और खुश होकर वापस आया। आपके कहे मुताबिक मैंने सारे पंख हवा में उड़ा दिए, मेरा काम हो गया। अब तो मेरा गुनाह धुल गया ना, अब तो सब ठीक है। नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है। अब जाओ और उन सारे पंखों को वापस जमा करके इस तकिए में भर लाओ। मुझे एक भी पंख कम नहीं चाहिए। वो भागा, लेकिन हवा अपना काम कर चुकी थी। घंटों की मेहनत के बाद वो खाली हाथ रोते हुए वापस आया। हजरत, ये तो नामुमकिन है, मैं उन्हें वापस कैसे लाऊं? कुछ नाली में गिर गए, कुछ को हवा मीलों दूर ले गई, वो अब मेरे बस में नहीं है। तब बुजुर्ग ने उसे वो सबक दिया जो आज हमें समझना है। यही हाल तुम्हारी जुबान का है बेटा। तुमने बात तो आसानी से फैला दी, माफी भी मांग लोगे, लेकिन जो बदनामी और झूठ हवा में घुल गया
उसे तुम चाहकर भी वापस नहीं समेट सकते। इसलिए छठे कलमे में हम गिड़गिड़ा कर कहते हैं, मुझे ऐसी गलती से बचाना जिसे मैं चाहकर भी ठीक न कर सकूं। तो दोस्तों, जुबान पर ताला लगाना तो हम सीख गए, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो इज्जतदार इंसान की जिंदगी पर धब्बा लगा देता है, वो है बुहतान और बेहयाई। कलमे के अगले हिस्से में हम उस गुनाह की बात करेंगे जो ईमान को खतरे में डाल देता है। यहाँ हम अल्लाह के सामने इकरार करते हैं, वल फवाहिशी वल बुहतानी वल मासी कुल्लिहा। इसका तर्जुमा है, और मैं पनाह मांगता हूँ बेहयाई से और बुहतान यानी झूठा इल्ज़ाम लगाने से और तमाम गुनाहों से। फवाहिश वो बेहयाई है जो समाज की शर्म हया को मार देती है, लेकिन बुहतान ये शिर्क के बाद सबसे खतरनाक गुनाहों में से एक है। गीबत तो वो बुराई है जो सच हो, लेकिन बुहतान वो है जो झूठ हो और किसी पाक दामन इंसान पर कीचड़ उछालने के लिए बोला जाए। बुहतान कितना भारी है। हदीस में आता है कि अगर वो लफ्ज जो तुमने किसी की बुराई में बोला उसे समंदर में मिला दिया जाए तो वो पूरे समंदर के पानी को कड़वा कर दे। जब हम मजे मजे में कहते हैं अरे वो तो ऐसा है या उसने जरूर कुछ गलत किया होगा बिना किसी सबूत के, तो हम अपनी पीठ पर एक ऐसा पहाड़ लाद रहे होते हैं जो कयामत के दिन हमारी कमर तोड़ देगा। बुहतान लगाने वाले का असली अंजाम क्या होता है, इसे ताबीन के दौर के एक मशहूर वाक़ये से समझते हैं। एक बार हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली कि फलां शख्स महफिल में बैठकर उन पर झूठे इल्जाम यानी बुहतान लगा रहा है और उनकी बुराई कर रहा है। हजरत, वो शख्स आपकी इज्जत उछाल रहा है, सबके सामने आपको बुरा भला कह रहा है, आप उसे जवाब क्यों नहीं देते? हजरत ने कोई गुस्सा नहीं किया। वो बाजार गए, ताज़ा खजूरों और मिठाई का एक थाल सजाया और उस शख्स के घर भिजवा दिया। हजरत, मैंने तो आपकी बुराई की थी, फिर आपने मुझे ये तोहफा क्यों भेजा? हजरत हसन बसरी ने जो जवाब दिया वो आज हमें लिख लेना चाहिए। भाई, मुझे खबर मिली है कि तुमने अपनी सारी नमाजें और नेकियां मेरे खाते में जमा करवा दी हैं। अब तुमने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया तो मेरा भी फर्ज बनता था कि बदले में तुम्हें कुछ दुनिया की मिठाई ही खिला दूं। उस शख्स को समझ आ गया कि हजरत हसन बसरी ने उसे मिठाई नहीं भेजी बल्कि उसे आईना दिखाया है। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बरसों की मेहनत, अपनी नमाजें, अपने रोजे, सब कुछ अपनी जुबान की एक गलती से हजरत के हवाले कर दिए। या अल्लाह, मैं तो लुट गया। मैंने दूसरों को गिराने के चक्कर में अपनी ही आखिरत का सौदा कर लिया। दोस्तों, हम अपनी दौलत की तिजोरी पर तो ताला लगाते हैं ताकि कोई चोर न ले जाए, लेकिन अपनी नेकियों की तिजोरी को जुबान के जरिए खुला छोड़ देते हैं। इसलिए छठे कलमे में हम गिड़गिड़ाते हैं, वला बुहतानी वला मासी कुल्लिहा, ताकि हम उस दिन मुफलिस होकर न उठें जिस दिन नेकियों के सिवा कोई करेंसी नहीं चलेगी। दोस्तों, अब हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां हमने जानबूझकर किए गए शिर्क से लेकर जुबान और समाज के गुनाहों तक सबसे खुद को पाक कर लिया। अब वक्त है एक नई शुरुआत का, एक ऐसा इकरार जो हमारे ईमान को ताज़ा कर दे और हमें दोबारा इस्लाम के किले में दाखिल करें। चलते हैं इस सीरीज के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से में। यहाँ हम अपनी वफादारी का नया ऐलान करते हैं, व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा है, और मैं इस्लाम लाया, यानी मैंने फिर से सर झुकाया और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ व अस्लमतु यानी मैं इस्लाम लाया बहुत भारी लफ्ज़ है। इसका मतलब है तजदीद ईमान, यानी अपने ईमान को ताज़ा करना। वैसे ही हमारे ईमान को रोज़ाना इस कलमे की ज़रूरत होती है। ईमान पुराना कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारे सीनों में ईमान ऐसे ही पुराना हो जाता है जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है। लिहाजा अल्लाह से सवाल किया करो कि वो तुम्हारे दिलों में ईमान को ताज़ा कर दे। कपड़ा जिस्म की हिफाजत करता है और ईमान रूह की। ये छठा कलमा वही रूहानी गुस्ल है जो हमारे दिल पर लगी दुनिया की धूल को धोकर उसे फिर से नया कर देता है। आखिरी बात एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक नौजवान सिपाही ने एक बुजुर्ग गाजी से पूछा, हजरत, जंग तो अभी हफ्तों दूर है, फिर आप रोज अपनी तलवार को घंटों बैठकर साफ क्यों करते हैं? बेटा,
जंग बताकर नहीं आता, ये हवा में मौजूद नमी से चुपके से लग जाता है। अगर मैं इसे रोज साफ न करूं तो जिस दिन दुश्मन सामने होगा ये तलवार म्यान से बाहर ही नहीं निकलेगी। मैं रोज इसे इसलिए चमकाता हूं ताकि जब मेरा बादशाह हुक्म दे तो मेरी तलवार में कोई कमी न हो। दोस्तों, ये दुनिया एक जंग का मैदान है और शैतान हमारा दुश्मन। ये छठा कलमा वही सफाई है। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु, तो आप अपने ईमान की तलवार से दुनिया की मोहब्बत का जंग हटा रहे होते हैं। दोस्तों, हमने शिर्क और गुनाहों के अंधेरों का लंबा सफर तय कर लिया। अब वक्त है उस सबसे बड़ी दौलत को संभालने का जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अगर आपको लगता है कि आपका ईमान कमजोर पड़ रहा है, अगर वसवसे आपको घेरे रहते हैं, डर लगता है कि कहीं मौत के वक्त ईमान साथ छोड़ न दे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वादा सुनिए। मेरे सरकार ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाहु होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। और फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। सहाबा ने पूछा कैसे? तो फरमाया, कसरत से अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो मेरे भाइयों और बहनों, मायूसी के अंधेरे कमरे से बाहर निकलो। शैतान चाहता है कि तुम कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंसे रहो, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम पाक साफ होकर उसके पास आओ। दरवाजा खुला है, बस एक कदम बढ़ाओ। आइए, आज इस पूरी सीरीज को मुकम्मल करने से पहले अपने रब से अपने ईमान की भीख मांग लेते हैं। अपने दिल पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ आमीन कहिए। या अल्लाह, या रब्बुल आलमीन, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, हम तेरे बहुत कमज़ोर बंदे हैं। या अल्लाह, जाने अनजाने में अगर हमने कोई शिर्क किया। अच्छा, तो ये था आज का टॉपिक। कलमा जो होता है उसका आखिर मतलब क्या है, राज क्या है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? जी बहुत अच्छी लगी, ये ईमान ताज़ा हो गया सुन के। तो आप लोगों ने देखा कैसे हमने छठे कलमे की तफसीर आपको बताई, और हमारे ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हमारी पहली वीडियो थी। तो इंशाल्लाह इस तरह की AI जनरेटेड जो वीडियो होती हैं, इसमें जो स्टोरी होती है वो तो हकीकत में जो है वो ही बताते हैं। बाकी जो इमेज वगैरह होती हैं, वीडियोस वगैरह होती हैं, वो सिर्फ AI से होती हैं। तो हमारा ये पहली वीडियो थी, हमारा फास्ट चैनल है हमारा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे जो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।